रेवरेंड आइजक क्राइस्ट चैपल का वरिष्ठ प्रचारक है। वो एक उत्तेजित प्रचारक है जो परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार करते हैं। अब आप उनका संदेश सुन रहे हैं जिसका शीर्षक है ये साल 2007 परमेश्वर के परिपूर्णता का शुरुआत करेगा। Now this morning I'd like to come with a word of the Lord to you, and I'd like you to turn with me please in your Bibles to Isaiah chapter 35, and we are going to read verse 10. Isaiah chapter 35 and verse 10. And the ransomed of the Lord shall return and come to Zion with songs and everlasting joy upon their heads. They shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away. आज सुबह मैं आपके पास परमेश्वर के वचन के साथ आया हूँ और मैं चाहूँगा कि आप अपने बाइबल में यशाया अध्याय 35 ले लीजिए और हम पढ़ने जा रहे हैं वचन 10। यशाया अध्याय 35 वचन 10। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। Now I have a message from the Lord that I have titled, The year 2007 will spark off the perfection of God. अब मेरे पास परमेश्वर से आपके लिए एक संदेश है जिसका शीर्षक मैंने रखा है, यह साल 2007 परमेश्वर के परिपूर्णता का शुरुआत करेगा। That there are 7 major areas that will be pronounced in the next 7 years, beginning from this year 2007, that God spoke about. 7 major areas. And He said 2007 is not just going to be 2007, it's going to be 2007 and sevens. अगले 7 सालों में 7 प्रधान क्षेत्र होगा जो एकदम स्पष्ट होगा और वह इस साल 2007 से प्रारंभ होगा। परमेश्वर ने यह कहा कि यह सिर्फ 2007 ही ना होगा, यह सातों का साल होगा। Now, much of this message is prophetical, and I'd like you to note down the scripture portions. अब यह संदेश एक भविष्यवाणी है और मैं चाहूँगा कि आप इन वचनों को लिखें। Now, the first major area that He said was this, and that area is found in Genesis chapter 41. He spoke about the area of the Spirit. Spiritually, He spoke about something to me from Genesis chapter 41. अब पहला क्षेत्र जिसके बारे में परमेश्वर ने मुझसे कहा वह उत्पत्ति अध्याय 41 में है। उन्होंने आत्मा के क्षेत्र के बारे में बोला। उत्पत्ति अध्याय 41 में से उन्होंने आत्मिक क्षेत्र में मुझसे कुछ कहा। Now this is what He said. He said, a supernatural Joseph's anointing will be evidenced on the church and ministry. He called it a Joseph's anointing. अब उन्होंने ऐसा कहा कि एक अलौकिक यूसुफ का अभिषेक का लक्षण क्लीसिया पर और आयोग पर होगा। परमेश्वर ने उसे यूसुफ का अभिषेक बुलाया। In other words, what He was saying was, He said the church will be a succorer of many. God's word will go out like never before, starting from this year. An understanding of dreams and visions will bring tremendous release to many from oppression of all forms. दूसरे शब्दों में परमेश्वर कह रहे थे कि क्लीसिया अनेक लोगों के लिए सहायक बनेगा। परमेश्वर का वचन ऐसे फैलेगा जैसे पहले कभी हुआ नहीं, इस साल से प्रारंभ होकर, और सपने और दर्शन का समझ जिससे बहुत लोगों को अत्यधिक छुटकारा मिलेगा सब प्रकार के अंधेर से। He said, whom the world despises and whom the church also hardly recognizes. He said, I will raise the despised to new levels of usability in my kingdom. परमेश्वर ने कहा कि जिन लोगों को दुनिया तुच्छ मानती है और जिन्हें क्लीसिया में कोई पहचानता नहीं, उन लोगों को परमेश्वर उनके राज्य में एक नए स्तर में प्रयोग करेंगे।
Now we read about what happened in Egypt in Genesis chapter 41, verses 47 to 57. It talks about the years of plenty that first started off, where there was plenteousness in the land. Read Genesis 41, verse 47, please. अब हम पढ़ते हैं कि मिस्र में क्या हुआ। उत्पत्ति के 41 अध्याय में वचन 47 से लेकर 57 तक वह सुखकाल के वर्षों के बारे में बातें कर रहा था, जब भूमि बहुतायता में देती रही। पढ़िए उत्पत्ति अध्याय 41 वचन 47। In the years of plenteousness, the 7 years, the earth brought forth by handfuls. Isn't it amazing that the earth kept just yielding its fruit in the years of plenteousness? And what did that prepare Joseph for? Was for a special anointing to come upon him, so that the world could come and receive the blessing that this anointing on Joseph would release in a supernatural way that would feed many. सुखकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायता से अन्न उपजाती रही। यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि बहुतायता के समय में भूमि फल देती रही और इसने यूसुफ को किसके लिए तैयार किया? एक विशेष अभिषेक के लिए, ताकि सारी दुनिया आकर उससे वह आशीर्वाद स्वीकार करेगी जो यूसुफ के अभिषेक दे रहा था, जो एक अलौकिक रीति में अनेक लोगों को खिलाएगा। You must understand that he became a succorer of many. And all this was accomplished as a result of the supernatural anointing on him. That's the reason why God said that first. He said a supernatural Joseph's anointing will be evidenced on the church and on the ministry of God, where the world will literally come seeking after God's wisdom and the anointing, and they will come to the very doorstep of the church. आपको समझना होगा कि वह अनेक लोगों के लिए सहायक बना, और इस सब का कारण वह अलौकिक अभिषेक था जो यूसुफ पर था। इसी कारण परमेश्वर ने पहले यह कहा कि एक अलौकिक यूसुफ का अभिषेक क्लीसिया पर और परमेश्वर के आयोग पर होगा, और इस कारण दुनिया परमेश्वर की बुद्धि और अभिषेक को खोजता हुआ क्लीसिया के द्वार पर आएगा। Now please listen, it's going to be far greater than has ever been evidenced. And that's the reason why God spoke about it. Firstly, he said a supernatural anointing is going to be released. Now listen, and listen good please. In every year, when God speaks a supernatural word, there will be the ones who receive the word and prepare themselves for the work ahead. अब ध्यान से सुनिए, जैसे पहले कभी हुआ नहीं ऐसे होने वाला है, और इसी कारण परमेश्वर ने इसके बारे में पहले कहा। उन्होंने कहा एक अलौकिक अभिषेक निकलेगा। अब ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह सुनिए। हर साल जब परमेश्वर अलौकिक बातें करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उसे स्वीकार करते हैं और अपने आप को आगे आने वाले काम के लिए तैयार करते हैं। But in every year and in every place of worship, there will always be the ones who are unprepared. They don't prepare themselves. Their mindset is, if God wants it, let him do it. Now you must understand that when God spoke about this Joseph's anointing, he was talking about a collective usage. He was talking about a corporate anointing. पर हर साल में और हर आराधना के स्थान में कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को तैयार नहीं करते। उनका विचारधारा यह होता है कि अगर परमेश्वर चाहते हैं तो वे उसे करेंगे। अब आपको समझना होगा कि जब परमेश्वर यूसुफ के अभिषेक के बारे में बातें कर रहे थे, वे उसका सामूहिक इस्तेमाल के बारे में बातें कर रहे थे। परमेश्वर एक संगठित अभिषेक के बारे में बातें कर रहे थे। Now for years it's been like that. God says he is going to work in such a way that the ones who are not prepared will either have to prepare themselves for this blessing, or else they will be badly affected.
Now, this is a spiritual blessing which has to do with the church. सालों से ऐसा ही हो रहा है। परमेश्वर कह रहे हैं कि वे ऐसे काम करने जा रहे हैं कि जो लोग तैयार नहीं हैं उन्हें तैयार बनना होगा इस आशीर्वाद को पाने के लिए, नहीं तो उन पर बुरा असर पड़ेगा। अब यह एक आत्मिक आशीर्वाद है जो क्लीसिया से जुड़ा हुआ है। God's going to remove such people because He is coming back for a church that is without spot or wrinkle. So I want you to pay attention to what He was saying. परमेश्वर ऐसे लोगों को हटाने जा रहे हैं क्योंकि वे एक ऐसी क्लीसिया के लिए वापस आ रहे हैं जो बिना कलंक या जूरी का होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसकी ओर ध्यान दें जो वे कह रहे थे। Then the second thing He spoke about, and you're going to see it and you're going to be a part of it. He spoke about financially what's going to happen. दूसरी बात जो उन्होंने कहा, उन्होंने वित्तीय विषय के बारे में कहा जिसको होते हुए आप देखेंगे और जिसका आप एक हिस्सा बनेंगे। Now often people wonder why would God have to speak about finances? You must understand that much of what happens in this world is related to the area of finances. Much of what happens in this world. अब अक्सर लोग सोचते हैं कि परमेश्वर क्यों धन के बारे में बातें करते हैं। आपको समझना होगा कि इस दुनिया में होती अधिक बातें का संबंध धन से होता है। In some way or other, we are affected by the things that happen in the financial realm. Now this is what he said. He said restoration will be evidenced in the lives of the ones who have sown towards the anointing on men of God. Now when I talk about men of God, I'm talking about the ministries of God as well. If you have sown towards the anointing, if you have invested rightly, then please listen. God said restoration will come. It won't be a double blessing. It will be a sevenfold restoration. Can I have an amen, please? और किसी न किसी तरह इस वित्तीय क्षेत्र में जो होता है उसका असर हम पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि जो लोग परमेश्वर के भक्त पर जो अभिषेक होता है उसकी ओर बीज बोए, उनके जीवन में पुनरुद्धार होगा। अब जब मैं परमेश्वर के भक्त के बारे में बातें कर रहा हूँ तो मैं परमेश्वर के आयोग के बारे में भी बातें कर रहा हूँ। अगर आपने उस अभिषेक की ओर बीज बोया है, अगर आपने सही जगह में अपना धन लगाया है, तो ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने कहा कि पुनरुद्धार आएगा और यह 2 गुण आशीर्वाद होगा नहीं, यह 7 गुण का पुनरुद्धार होगा। आमेन बोलिए। A sevenfold restoration. 7 गुण पुनरुद्धार। Come with me to Proverbs chapter 6, verse 31. Proverbs chapter 6 and look at verse 31, please. मेरे साथ आइए नीति वचन 6 अध्याय वचन 31। नीति वचन 6 अध्याय और वचन 31। तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना बर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। But if he be found, remember the thief is already found. For years people never knew who was robbing them. They never knew that the devil was against them. But thank God for God's word. The thief is exposed. Can I have an amen, please? यदि वह पकड़ा जाए, याद रखिए चोर पहले से ही पकड़ा गया, पर सालों से लोग यह जानते नहीं थे कि कौन उनसे चुरा रहा था। वे जानते नहीं थे कि शैतान इन लोगों के विरुद्ध था, पर परमेश्वर को धन्यवाद उनके वचन के लिए कि चोर पकड़ा गया। आमेन बोलिए। Now, as an exposed thief, what should he do? He shall restore sevenfold. He shall give all the substance of his house back to you. अब जैसे चोर पकड़ा गया तो उसे क्या करना होगा? उसे 7 गुना भरना होगा। उसे अपना घर का सारा धन आपको देना पड़ेगा। Now, as I kept hearing from the Lord, there was this portion of scripture that God took me to that I have never really paid close attention to. I have read it, but I never paid close attention to it, like he was talking to me about this financial restoration. अब
जैसे मैं परमेश्वर से सुनता रहा, परमेश्वर ने मुझे यह वचन दिखाया। यह वचन मैंने पहले भी पढ़ा था, पर जैसे वह मुझे दिखा रहे थे वित्तीय पुनरुद्धार के बारे में, मैंने इसे देखा नहीं था। I want you to turn with me please to 2 Kings. I want you to follow in your Bibles please as we hear this portion read. 2 Kings chapter 8 verses 1 to 6. मेरे साथ आइए दूसरे राजाओं, अपने बाइबल में देखिए जैसे हम सुनेंगे इस वचन को। दूसरे राजाओं 8वां अध्याय वचन 1 से लेकर 6 तक। जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष के बीतने पर वह पलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दोहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए उनका मुझसे वर्ण कर। जब वह राजा से यह वर्ण कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दोहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था। जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था वर्ण जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो सब इसे फेर दे। Hallelujah! I don't know whether you listened carefully to what was being read. This woman was not an ordinary woman. She was a woman who in 2 Kings chapter 4 had already sown into Elisha's life. हालेलुया! मैं जानता नहीं कि क्या आपने जो पढ़ा गया उसको सुना। ध्यान से सुनिए। यह स्त्री एक सामान्य स्त्री नहीं थी। वह एक ऐसी स्त्री थी जिसने दूसरे राजाओं 4 अध्याय में एलीशा के जीवन में बीज बोया था। Now she was a woman who had sowed into the anointing. Now, before the famine started, she was alerted to go elsewhere. अब उस स्त्री ने अभिषेक की ओर बीज बोया था। अब अकाल प्रारंभ होने से पहले उसे सूचना मिला कि उसे कहीं और जाना था। So she obeys the anointing, and what does she do? She moves away from this land, and there was 7 years of famine in the land. तो उसने अभिषेक को माना और उसने क्या किया? वह उस देश से चली गई और उस देश में 7 वर्ष के लिए अकाल था। Now the most amazing thing is this. She sojourned in the land of the Philistines 7 years. Because Elisha had told her, for 7 years there's going to be famine in the land. Get out from this place. Why? Because you respected the anointing. God will provide for you in the land of the Philistines. But that's not all. There's something else that God is going to do. अब आश्चर्यजनक बात यह था कि वह 7 वर्ष पलिश्तियों के देश में रही, क्योंकि एलीशा ने उससे कहा कि उस देश में 7 साल के लिए अकाल पड़ेगा। इस देश से बाहर जाओ। क्यों? क्योंकि तुमने अभिषेक को सम्मान दिया है। परमेश्वर तुम्हारे लिए पलिश्तियों के देश में उपाय करेंगे, और यही नहीं, परमेश्वर कुछ और भी करने वाले हैं। Now, the woman returned to the land at the close of the 7 years and found that in her place she had lost everything. अब यह स्त्री 7 वर्ष के बीतने पर पलिश्तियों के देश से वापस लौट आई और देखी कि वह अपने देश में सब कुछ खो चुकी थी। You must understand that the famine did not affect in the land of the Philistines, but she was not yet prepared for the 7-fold blessing
that God was going to release in her life. आपको यह समझना होगा कि अकाल का असर उस पर पलिश्तियों के देश में पड़ा नहीं और वह उस 7 गुना आशीर्वाद के लिए तैयार नहीं थी जो परमेश्वर उसको देने जा रहे थे। Now you must understand something here. I want you to see the perfect timing in which the miracle took place. अब आपको यह समझना होगा, देखिए वह पक्का समय जिसमें यह आश्चर्य कर्म हुआ। The very moment she came into the presence of the king, that was the very moment that the king was talking to Gehazi. जिस समय यह स्त्री राजा को मिलने आई, उसी समय राजा गहजी से बातें कर रहा था। Now that's not the main thing. The most amazing thing is this. The king was talking to a leper called Gehazi. Lepers were always outcasts. They were not permitted into the king's palace. Remember, Gehazi had already become a leper because what he had done with Naaman. But when God decides to bless you, my friends, he takes the foolish things of the world and confounds the wise. अब यह मुख्य बात नहीं है। आश्चर्यजनक बात यह है कि राजा कोढ़ी से पीड़ित गहजी से बातें कर रहे थे। उस समय में कोढ़ी से पीड़ित लोगों को नगर से बाहर निकालते थे और उन्हें राजा के महल में अनुमति नहीं था। याद रखिए, गहजी ने नामान के साथ जो किया उस कारण वह कोढ़ी बन गया था। पर जब परमेश्वर निश्चय करते हैं कि वे आपको आशीर्वाद करेंगे, तो परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुनते हैं ज्ञानवानों को लज्जित करने। But you must understand that Gehazi was permitted to stand before the king because the king was curious to know what Elisha did. And the very moment that Gehazi was speaking to the king, the woman came in and he said, "Here's the woman. This is the woman. It was her son who was raised from the grave." पर आपको यह समझना होगा कि गहजी को राजा के सामने खड़े होने की अनुमति मिला, क्योंकि राजा जानना चाहता था कि एलिशा ने क्या किया। और जब गहजी राजा से बातें कर रहा था, यह स्त्री आई और गहजी ने कहा, यह वही स्त्री है, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलिशा ने जिलाया था। And what did the king say? The Bible says he appointed an officer. I want you to highlight that phrase. There will be an appointed angel to see to it that the sevenfold restoration of everything lost comes your way. In the name of Jesus. और राजा ने क्या कहा? बाइबल कहता है कि राजा ने एक हाकिम नियुक्त किया। उस वाक्य पर रेखा खींचकर रखिए। आपने जो कुछ खोया है उसका 7 गुना वापस पाने के लिए आपके लिए एक देवदूत नियुक्त किया जाएगा यीशु के नाम में। Remember, the fruits of the 7 years, every one of them was restored, given back to her, until it came. A king appointed officer was in charge of seeing that it came. That's what he spoke about to me. He said the timing of the perfect restoration will be so precise that it will amaze a lot of people. जब राजा ने स्त्री से पूछा, तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया, तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो, सब इसे फेर दे। याद रखिए, उन पूरे 7 सालों का फल उसे वापस मिल रहा था और जब तक वह फल उसके हाथ में आए, एक हाकिम उसके साथ था जो राजा के द्वारा नियुक्त किया गया था। परमेश्वर इसी के बारे में मुझसे बातें कर रहे थे। वे बोले कि वापस पुनरुद्धार आने का समय इतना ठीक होगा कि बहुत लोग हैरान हो जाएंगे। You'll be amazed at the perfect timing of God. That's what he spoke to me. आप परमेश्वर के ठीक समय को देखकर हैरान हो जाएंगे। परमेश्वर ने मुझसे यही कहा। Number 3, enemies and opposition. तीसरा,
दुश्मन और विरोध करने वाले। This is what he said. Enemies and opposition will crumble and melt before the anointed of God in the church. परमेश्वर ने यही कहा कि दुश्मन और विरोध करने वाले चूर चूर हो जाएंगे और पिघल जाएंगे क्लीसिया में जो परमेश्वर के अभिषिक्त हैं उनके सामने। Can I have an amen, please? That's talking about you. Your individual opposition, your individual opposers will become nothing. They will crumble before the anointed in the church. Deuteronomy chapter 28, please. आमेन बोलिए। यह आपके बारे में बातें कर रहा है। जो लोग आपके विरोध करते हैं वे मिट जाएंगे। वे क्लीसिया में जो अभिषिक्त हैं उनके सामने चूर चूर हो जाएंगे। व्यवस्था विवरण 28। They'll come up against you in one way, but the sevenfold blessing of putting them to flight 7 ways is what God is going to establish. Because too often the church has been taken for a ride. The anointed of God have been taken for a ride. Most people have risen up against the church and taken the people of God for a ride. God says it's going to all change. Can I have an amen, please? In relationship with this verse, from Deuteronomy chapter 28 verse 7, again Isaiah 41 verse 12, Jeremiah 30 verse 23 was given to me. वे एक मार्ग से आप पर चढ़ाई करेंगे पर 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। यही 7 गुना आशीर्वाद है। परमेश्वर इसी को स्थापित करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत समय में क्लीसिया को बहुत सामान्य समझते हैं। परमेश्वर के अभिषेक को भी सामान्य समझते हैं। बहुत लोग क्लीसिया के विरुद्ध उठे हैं और परमेश्वर के लोगों को सामान्य समझते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि यह सब बदलेगा। आमेन बोलिए। इसके संबंध में परमेश्वर ने मुझे व्यवस्था विवरण 28 वचन 7, यशाया 41 वचन 12, यिर्मयाह 30 वचन 23 दिया है। Remember, Deuteronomy 28:7 talks about putting the opposers to flight. याद रखिए, व्यवस्था विवरण 28 वचन 7 इस वचन शत्रु को भगाने के बारे में बता रहा है। Enemies and opposers. Opposition will crumble. Now come with me to Jeremiah chapter 28. शत्रु और विरोध करने वाले, विरोध चूर चूर हो जाएगा। Jeremiah chapter 28, and I want you to read from verses 10 to 17. मेरे साथ आइए यिर्मयाह 28 पढ़िए वचन 10 से लेकर 17 तक। तब हनन्याह भविष्यद्वक्ता ने उस जुए को जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की गर्दन पर था उतार कर तोड़ दिया। और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यहोवा यूं कहता है, इसी प्रकार से मैं पूरे 2 वर्ष के भीतर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के जुए को सब जातियों की गर्दन पर से उतार कर तोड़ दूंगा। तब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता चला गया। And Jeremiah went his way. तब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता चला गया। Why? Because he had heard Hananiah speak a word which was contradicting what God was saying to him. क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनसे जो कह रहे थे उससे विपरीत बातें हनन्याह को कहते हुए सुन रहे थे। He didn't speak anything, he went his way. Look at what happens from verse 12 onwards. यिर्मयाह ने हनन्याह से कुछ कहा नहीं, वह चला गया। देखिए क्या हुआ वचन 12 से। जब हनन्याह भविष्यद्वक्ता ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की गर्दन पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया, उसके बाद यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। जाकर हनन्याह से यह कह, यहोवा यूं कहता है, तूने काठ का जुआ तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने उसके बदले लोहे का जुआ बना लिया है। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे का जुआ रखता हूँ और वे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन रहेंगे और इनको उसके अधीन होना पड़ेगा
क्योंकि मैदान के जीव जंतु भी मैं उसके वश में कर देता हूँ। यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा, हे हनन्याह, देख, यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है। इसीलिए यहोवा तुझसे यूं कहता है, देख, मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, इसी वर्ष में तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातें कही है। इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया। Wait. Now please listen. Why is this portion of scripture important? Because these are men who come and speak to the church the word that God never spoke. And they make the church believe a lie. They make a backslidden people believe a lie. They make lukewarm people believe a lie. And God is angry with such men. That's one kind of an opposition that God's been facing for years from people who have operated under a different spirit. अब ध्यान से सुनिए, यह वचन मुख्य क्यों है? क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं जो क्लीसिया में आकर वह सारी बातें बताते हैं जो परमेश्वर ने कहा नहीं, और क्लीसिया भी उस झूठ को मानती है। जो लोग बट जाते हैं वे भी इस झूठ को मानते हैं। जो लोग गुनगुना होते हैं वे भी इस झूठ को मानते हैं, और परमेश्वर ऐसे लोगों से नाराज़ है। यह एक तरह का विरोध है जिसका सामना सालों से परमेश्वर कर रहे हैं, ऐसे लोगों से जो एक अलग आत्मा के प्रभाव में आकर काम करते हैं। When you're talking about opposition, we are talking about opposers, we are talking about people who rise up against the anointed of God in the church. जब हम विरोध के बारे में बातें कर रहे हैं तो हम उन लोगों के बारे में बातें कर रहे हैं जो विरोध करते हैं और क्लीसिया में परमेश्वर के अभिषेक के विरोध में उठते हैं। In the 7th month, after the word of judgment was pronounced, this man died. And it's amazing because it talks about the perfection of the judgment of God that will come up against the opposers of the anointed of God. न्याय के वचन के आने के बाद 7वां महीने में यह आदमी मरा, और यह आश्चर्यजनक है क्योंकि परमेश्वर के न्याय के परिपूर्णता के बारे में यह बता रहा है जो उन लोगों पर आएगा जो परमेश्वर के अभिषेक के विरोध करते हैं। Why? Because you must understand, when a man makes people in the church believe a lie, he is teaching rebellion against the Lord. क्यों? क्योंकि आपको समझना होगा कि जब एक आदमी क्लीसिया में जो लोग होते हैं उन्हें एक झूठ पर विश्वास करना सिखाता है तो वह उन्हें परमेश्वर से फिरने सिखा रहा है। That's why God's angry. And we're going to see a lot of things happen in this area. इसीलिए परमेश्वर नाराज हैं और इस क्षेत्र में बहुत सारे चीजें को होते हुए हम देखेंगे। Then the fourth thing, in the area of praise and worship, चौथा, स्तुति और आराधना के क्षेत्र में the churches and individuals that fill up the churches or make up the churches will be led to worship and praise more than they've ever done in the past. क्लीसिया और वो लोग जो क्लीसिया का हिस्सा बनते हैं वे अधिक मात्रा में स्तुति और आराधना करेंगे जैसे उन्होंने पहले कभी किया ना हो। Churches will become praise places, worshipping places. The prophets of God have prophesied about it happening. They have prayed about it and wished for it. But now the time has come. The tabernacle of David will be erected like it's never been done before. क्लीसिया एक ऐसा स्थान बनेगा जहां स्तुति होगा, आराधना होगा। परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी दिया कि ऐसे होगा। उन लोगों ने प्रार्थना किया है इसके बारे में और इसे चाहा भी है, पर अब समय आया है। दाऊद का डेरा ऐसे उठाया जाएगा जैसे कभी हुआ ना हो। Come with me to Psalm 119 and verse 164, please. मेरे साथ आइए भजन 119 वचन 164। 7 times a day do I praise thee because of thy
righteous judgments. तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। It's talking about the perfection of praise as you understand the judgments of God, the righteous judgments of God. यह स्तुति के परिपूर्णता के बारे में बातें कर रहा है। जैसे आप परमेश्वर के नियमों को समझेंगे, परमेश्वर के धर्ममय नियमों को। Churches will be turned into places of praise and worship. Worshippers will throng the church to worship the Lord in the perfection of praise and worship continually. क्लीसिया स्तुति और आराधना की जगह बन जाएगी, जहां लोग क्लीसिया में आएंगे परमेश्वर को स्तुति और आराधना के पूर्णता में हर समय स्तुति और आराधना करने। Number 5. This is so important. He spoke about dream seeds. He said, for years people used to think dream seeds will happen when they should happen. They'll come to pass when they should come to pass. He said, no longer. He said, dream seeds will have a definite time frame and manifestation. 5वां, यह बहुत मुख्य है। परमेश्वर दर्शन के बीज के बारे में बोले। उन्होंने कहा, सालों से लोग सोचते आए कि दर्शन का बीज तब पूरा होगा जब उसका समय आएगा। परमेश्वर बोले, अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हर दर्शन के बीज का पूरा होने का और प्रकटीकरण होने का एक पक्का समय होगा। You will begin to understand the correct time frame. He said, for the manifestation of dream seeds, there will be no indefinite waiting in uncertainty for them to come to pass. You will know exactly when they will come to pass. आप उस ठीक समय के बारे में समझेंगे। उन्होंने कहा कि दर्शन के बीज के प्रकटीकरण के लिए आपको अनिश्चित समय के लिए इंतजार करना नहीं होगा। आप स्पष्ट रूप में जानेंगे कि वे कब पूरा होगा। You will never continually be waiting in an indefinite way. And he took me to an amazing portion of scripture from Genesis chapter 29. Genesis 29 and 2 verses from verse 20 and verse 30. आपको हर बार अनिश्चित रीति में इंतजार करना नहीं पड़ेगा। उन्होंने मुझे यह आश्चर्यजनक वचन दिखाया। उत्पत्ति अध्याय 29 और वहां से 2 वचन, वचन 20 और वचन 30। Genesis 29, 20 and 30. And Jacob served 7 years for Rachel, and they seemed unto him but a few days for the love he had to her. Now come with me to verse 30. And he went in also unto Rachel, and he loved also Rachel more than Leah, and served with him yet 7 other years. उत्पत्ति अध्याय 29 वचन 20 और 30। वचन 20, अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। वचन 30, तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। Now please listen, this is what the Lord was trying to bring to my mind. He said, a dream seed that you love, that God has placed in your heart, will have a definite time frame in which it will come to pass. And because you love the dream seed a lot, the intervening period will be as nothing. But one thing will be sure, at the close of the year, or the month, or the week, or the day, exactly according to the dream seed that God has placed in your heart, it will come to pass and you will enter into it. अब सुनिए, परमेश्वर इसी को मेरे मन में लाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि दर्शन के बीज जो आप प्यार करते हैं और जिसे परमेश्वर ने आपके हृदय में रखा, उसका पूरा होने का निश्चित समय लगेगा। और क्योंकि आप उस दर्शन के बीज को प्यार करते हैं, उसका पूरा होने का बीज का जो समय होता है वह तो आपके लिए कुछ भी न होगा। पर एक बात तो निश्चित है कि यह साल या महीना या हफ्ता या दिन
खत्म होने से पहले जैसे आपके हृदय में परमेश्वर ने दर्शन का बीज रखा है, ठीक उसी तरह वह पूरा होगा और आप उसमें प्रवेश करेंगे। It may have to do with your family life, it may have to do with your children's life, it may have to do with your financial life or your emotional life or your business or whatever you're doing, the way you're planning and preparing for your future. You're a student. I don't know exactly what the dream seed is because each man has a different dream seed invested into the person's life. But this is for sure. You will enter into it because there will be a definite time frame for it to manifest. यह आपके पारिवारिक जिंदगी में, आपके बच्चों के जिंदगी में, आपके वित्तीय जीवन में, यह भावुकतापूर्वक जीवन में भी हो सकता है, या आपके परिवार में, या आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें, या जो योजना बना रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं आपके भविष्य के लिए, उसमें भी हो सकता है। आप एक विद्यार्थी भी हो सकते हैं। मैं जानता नहीं कि आपका दर्शन का बीज क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अलग किस्म का दर्शन का बीज होता है जो उस व्यक्ति के जीवन में रखा गया है। पर यह ज़रूर है आप उसमें प्रवेश करेंगे, क्योंकि उसका प्रकटीकरण होने का एक निश्चित समय होगा। Number 6, the sixth major area. The favor of God will be seen in a supernatural way in 3 areas. छठा प्रधान क्षेत्र, परमेश्वर का अनुग्रह 3 क्षेत्र में एक अलौकिक रीति में दिख पड़ेगा। परमेश्वर का अनुग्रह 3 प्रधान क्षेत्र में प्रकट होगा। The favor of God will manifest in 3 major ways. Number 1, debtors will come out of debt. Debt release. परमेश्वर का अनुग्रह 3 प्रधान मार्ग में प्रकट होगा। पहला, जो लोग कर्ज में हैं वे कर्ज से बाहर आएंगे, कर्ज से मुक्त होंगे। Deuteronomy chapter 15, 1 and 2, please. व्यवस्था विवरण अध्याय 15 वचन 1 और 2। 7 वर्ष बीतने पर तुम छुटकारा दिया करना, अर्थात जिस किसी ऋण देने वाले ने अपने पड़ोसी को कुछ उधार दिया हो वह उसे छोड़ दे और अपने पड़ोसी या भाई से उसे बरबस ना भरवाए, क्योंकि यहोवा के नाम से इस छुटकारे का प्रचार हुआ है। You will not come out of debt because you are willing to come out of debt. You are going to see the supernatural favor of God bring you out of debt as you do the necessary things that you need to do to come out of it. And when you do come out of it, the glory will not go to man. The glory will go to the Lord. It's the Lord's release. आप कर से बाहर इसीलिए आएंगे नहीं क्योंकि आप उसे चाहते हैं, पर आप परमेश्वर के अलौकिक अनुग्रह को देखेंगे जो आपको कर से बाहर लाएगा। जैसे आप वो सब करेंगे जो आवश्यक होता है, और जब आप कर से बाहर आएंगे तो सारी महिमा परमेश्वर को मिलेगा, मनुष्य को नहीं। यह परमेश्वर के नाम का छुटकारा है। Now don't get confused with what he spoke about financially. The financial part of it was different. That's talking about restoration of things lost. Now this is specifically for people in debt. अब उस बात पर उलझन में पड़िए मत। जो उन्होंने वित्तीय विषय के बारे में कहा वह अलग बात है। वह खोए हुए चीज़ों के पुनरुद्धार के बारे में बातें कर रहा है। यह बात स्पष्ट रूप से उन लोगों के लिए है जो कर्ज में हैं। Secondly, the people whom you work for will pay you liberally. दूसरा, जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं वे आपको अत्यधिक मात्रा में तनख्वाह देंगे। Things that you never thought possible will begin to happen as people for whom you work for will pay you liberally. That's the favor of God. जो चीज़ आपने सोचा कि मुमकिन नहीं होगा वह होने लगेगा। जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं वे आपको अत्यधिक मात्रा में तनख्वाह देंगे। यही परमेश्वर का अनुग्रह है। It's not your wisdom, it's not your knowledge, it's not how smart you are or how good you are that's getting you that. It's the favor of God.
and God wants you to honor Him. Deuteronomy 15 and verses 12 to 14. यह आपका बुद्धि नहीं है या आपका ज्ञान भी नहीं है, आप कितने होशियार हैं या कितने अच्छे हैं, यह सारी बातें परमेश्वर की अनुग्रह को लाता नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनका आदर करें। व्यवस्था विवरण 15 वचन 12 से लेकर 14 तक। यदि तेरा कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री या इब्रिन तेरे हाथ बिके और वह 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना, और जब तू उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे तब उसे चूचे हाथ न जाने देना, वरन अपनी भेड़ बकरियों और खलिहान और दाख मधु के कुंड में से उसको बहुतायता से देना। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसी आशीष दी हो उसी के अनुसार उसे देना। How will they give? Liberally. Out of their blessing, they'll bless you. And it's amazing because this was spoken of in the context of old covenant people, having people who are working for them who were to be released on the 7th year. But God was bringing my attention to the salaries that people will receive. It will amaze you. वे कैसे देंगे? बहुतायता से, उनको मिले आशीष से वे आपको आशीर्वाद देंगे। यह आश्चर्यजनक है क्योंकि पुराने वाचे के लोगों के लिए जो लोग काम करते थे, जिन्हें 7वें वर्ष में स्वातंत्र्य मिलने जा रहा था, यह बात हमेशा उन लोगों के बारे में ही कहा जाता था। पर परमेश्वर मेरे ध्यान लोगों को जो तनख्वाह मिलेगा उसकी ओर ले जा रहे थे। आप आश्चर्यचकित होंगे। It'll amaze you. I mean, you'll get it and you will think, my God, I'm not even worth this much. And you will know it. But I want you to know something. You will give thanks to the Lord. Can I have an amen? आप आश्चर्यचकित होंगे। आप सोचेंगे मैंने इसके लिए काम किया ही नहीं, और आप यह जानेंगे भी। पर मैं चाहता कि आप इस बात को जानें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। आमेन बोलिए। Number 3, the third way in which favor will be loosed, in the area of guidance on what to speak. तीसरा मार्ग जिसमें अनुग्रह मिलेगा वह यह है कि आपको मार्गदर्शन मिलेगा कि आपको क्या बोलना है। In Numbers chapter 23 verses 1 to 5, we read about the 7 altars on which 7 oxen and 7 rams were offered by a man called Balaam. It was offered for one purpose, to know what to speak. गिनती अध्याय 23 वचन 1 से लेकर 5 तक वहाँ हम पढ़ते हैं, 7 वेदियाँ जिस पर 7 बछड़े और 7 मेढ़े का होम बलि चढ़ाया गया, बिलाम नामक मनुष्य द्वारा। उसका उद्देश्य यह था, यह जानने के लिए कि उसे क्या बोलना होगा। It will be as a result of the favor of God that guidance to speak the right word will be given. Turn with me to Luke's Gospel, chapter 21 and verse 15. यह परमेश्वर के अनुग्रह का परिणाम होगा जिसके द्वारा आपको ठीक शब्द बोलने का मार्गदर्शन मिलेगा। मेरे साथ आइए लूका के सुसमाचार अध्याय 21 वचन 15। For I will give you a mouth and wisdom which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। It will be a word of wisdom, and that will happen as a result of God's favor. Finally, the last thing, the last major area. यह बुद्धि का बोल होगा और यह परमेश्वर के अनुग्रह का परिणाम होगा। अंत में सबसे प्रधान क्षेत्र, Prayer at home, what we call family prayer, will be once again revived. घरों में प्रार्थना जिसे हम परिवार प्रार्थना बुलाते हैं वह फिर जिलाया जाएगा। Most people don't pray as a family. They pray as individuals. Wrong. People will start having
family prayer once again. As the altar of Baal is cut down and the altar of the Lord is re-erected. अधिकतर लोग परिवार बनकर प्रार्थना करते नहीं, वे अकेले में प्रार्थना करते हैं। यह गलत है। लोग फिर से परिवार बनकर प्रार्थना करेंगे, जैसे बाल की वेदी काट डालकर परमेश्वर के वेदी को फिर से बनाएंगे। Come with me to Judges chapter 6. मेरे साथ आइए न्यायों 6 अध्याय। Look at Judges chapter 6 and carefully read verses 25 and 26, please. देखिए न्यायों 6 अध्याय और वचन 25 और 26 को ध्यान से पढ़िए। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल। Follow, please. What should be cut down? The altar of Baal. What should be offered? Something very specific. The second bullock that your father owns, which is 7 years old. किसको गिराना होगा? बाल की वेदी को। वहाँ क्या होम बलि चढ़ाना होगा? स्पष्ट रूप से तुम्हारे पिता का दूसरा 7 वर्ष का बैल। The altar of Baal is erected in most houses. Only the altar of Baal takes on different names. Today the altar of Baal is called no time. The altar of Baal is called tiredness. The altar of Baal is called I am disgusted, so I am not praying with so and so. Now God says, cut that altar down and take the right bullock, the bullock of 7 years. बहुत घरों में बाल का वेदी बनाया गया है, सिर्फ यह कि उनका बहुत अलग अलग नाम होता है, जैसे कि समय नहीं है, तकान, मैं उस व्यक्ति से खींचा हुआ हूँ, इसीलिए मैं उसके साथ प्रार्थना नहीं करूँगा। परमेश्वर कहते हैं उस वेदी को गिराकर ठीक बैल को लेकर 7 वर्ष के बैल को लेकर cut it down. But there's something else that must be erected. The altar of the Lord. Look at verse 26. उस बाल का वेदी को गिराकर आपको एक और वेदी बनाना होगा, परमेश्वर की वेदी। वचन 26 को देखिए। और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। You've got to build an altar unto the Lord upon the top of this rock. On what will the altar be built? Go over the verse again. He said, upon this rock, upon the top of it. उस दृढ़ स्थान की चोटी पर आपको परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाना होगा। किस पर यह वेदी बनाया जाएगा? वचन फिर से पढ़िए। उन्होंने कहा उस दृढ़ स्थान की चोटी पर। On top of this rock, you build the altar. You don't build the altar with the rock missing. You've got to build the altar of the Lord on the revelation that Christ is Messiah every day. As you make the altar of the Lord the place of family prayer. And that will be a renewed thing in the houses of God's people, God said. इस दृढ़ स्थान की चोटी पर आपको वेदी बनाना होगा। आप वेदी को वहाँ बना नहीं सकते जहाँ वह दृढ़ स्थान लापता हो। आपको परमेश्वर की वेदी उस प्रकाशन पर बनाना होगा कि यीशु ही मसीहा है। जैसे आप हर दिन परमेश्वर की वेदी को अपना परिवार प्रार्थना का स्थान बनाएंगे। और परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर के लोगों के घर में परिवार प्रार्थना फिर से प्रारंभ होगा। There will be a coming together where people will begin to understand, if we don't pray, we don't have a family. If we pray, we'll stay together. लोग एक साथ आएंगे और यह बात समझेंगे
कि अगर वे प्रार्थना नहीं करेंगे तो उनके पास परिवार नहीं होगा। अगर हम प्रार्थना करेंगे हम साथ साथ रहेंगे। You've got to offer a burnt offering or what? That bullock of 7 years. Today, what is that bullock of 7 years? It's you, my friend. You come to the Lord. You come as a burnt offering before the Lord. Remember, a burnt offering was offered to win divine favor. आपको एक होम बलि चढ़ाना होगा। किसका? 7 वर्ष के बैल का। वह 7 वर्ष का बैल क्या है? वह आप है मेरे दोस्त। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो एक होम बलि बनकर उनके सामने आते हैं। याद रखिए, दैविक अनुग्रह पाने के लिए ही होम बलि चढ़ाया जाता है। You are the person. You come. You offer yourself. Total commitment. Let it be a perfect offering where you come and offer yourself before God. And then God smells something good. He smells burnt flesh. आप ही वह व्यक्ति हैं। जब आप आते हैं तो आप अपने आप को एक बलि की तरह चढ़ाते हैं। संपूर्ण रूप से यह एक पक्का बलि होगा जहाँ पे आप आएंगे और अपने आप को परमेश्वर के सामने बलि की तरह चढ़ाएंगे और परमेश्वर को यह एक सुखदायक सुगंध लगेगा, वो जलती हुई मांस का। He'll become a God who will bless you. Now I want you to please make a note of Romans chapter 12 verses 1 and 2. वे एक ऐसे परमेश्वर बनेंगे जो आपको आशीर्वाद करेंगे। मैं चाहता कि आप इसे लिखें। रोमियो अध्याय 12 वचन 1 और 2। I've placed before you the 7 major areas in which God said He is going to work. These are the words of the Lord that the Lord spoke to me. I've given it to you. Now it's for you to keep and use. मैंने आपके सामने वह 7 प्रधान क्षेत्र रखा है जिसमें परमेश्वर ने कहा कि वे काम करने जा रहे हैं। अब यह आपके हाथ में है। यह परमेश्वर के वचन है जिसे परमेश्वर ने मुझसे कहा है। मैंने उसे आपको दिया है। अब यह आपके हाथ में है कि आप इसे रखें और प्रयोग करें। It starts off from now. और वह अब से शुरू होता है। அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் இப்பொழுது தலை வணங்கி ஜெபிப்போமா. Let's bow our heads in a moment of prayer. Father, in the mighty name of Jesus, what a joy it is to have heard your word this morning. And to know, Father, that you're talking about the perfection of God in the 7s that you want to see accomplished. हम सिर झुकाकर प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान यीशु के नाम में ये कितना खुशी की बात है कि हमने आपके वचन को सुना आज सुबह, और यह जानने के लिए पिता परमेश्वर कि आप सातों में परमेश्वर के परिपूर्णता को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। Hallelujah! Oh, hallelujah! Precious Father, I pray for your people who are standing before you this day. As I stretch out my hands towards them, I bless them in your name, in Jesus' name. हालेलुया, ओ हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आपके सामने खड़े हैं। मैं अपना हाथ आगे करके उनको आशीर्वाद करता हूँ आपके और यीशु के नाम में। Oh, hallelujah! Be blessed! Be blessed! In Jesus' name be blessed! हालेलुया, यीशु के नाम में आशीष पाइए। Touch them in a very special way. Prosper them in the knowledge and the understanding of your ways and the understanding of your word. Like you said, oh Father, let understanding of and revelation of dreams and visions be their portion. इन्हें विशेष रीति में छूइए, आपके मार्ग के ज्ञान में और समझ में और आपके वचन के समझ में इनका उन्नति कीजिए। जैसे आपने कहा पिता परमेश्वर, दर्शन और सपने की समझ और प्रकाशन इनका हिस्सा बने। And let it be influential in setting the captives free. और ये बंदियों को आज़ाद करने में काम करे। Let it touch and bless multiplied thousands, oh Father, in the mighty name of Jesus. For all the promises are yea and amen in Christ Jesus.
And that's the blessing we have, to be able to believe and to be able to declare your word over and over again, oh Father. यह हजारों को छुए और उनके लिए आशीर्वाद बने सर्वशक्तिमान यीशु के नाम में, पिता परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीहा में हर प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन है, और यही वो आशीर्वाद है जो हमारे पास है, जिसे हम विश्वास करते हैं और जिसे हम बार बार घोषित भी कर सकते हैं, पिता परमेश्वर। Oh precious Father, let your blessing abound in their life. Let your goodness run and overtake them. In the name of Jesus. In the name of Jesus. हे पिता परमेश्वर, आपका आशीर्वाद उनके जीवन में बढ़ता जाए, आपका भलाई उनके जीवन में रहे और आगे चले, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। In Jesus' name we pray, and everybody said, Amen and Amen. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं और सब बोले आमेन, आमेन। रेवरेंड आइजक का संदेश यहीं पे खत्म होता है। रेवरेंड आइजक के दूसरे संदेशों के बारे में जानने के लिए और हमारे मासिक अंग्रेजी सूचना पत्र पाने के लिए, जो परमेश्वर का वचन से भरा है, हर महीने के लिए हमें इस पते पर लिखें। एल शडाई क्रिश्चियन फाउंडेशन, पोस्ट बॉक्स नंबर 2510, चेन्नई 600009, तमिलनाडु, इंडिया।